Good morning, dear friends. Myself, Dr. Vikrant Sudhakar Palekar. I am working as Assistant Professor in Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College, Jawahar Palghar. Welcome on the lecture series on the topic Classification and Nomenclature of Organic Compound. This is the second session what we are doing on this particular topic. In earlier part, we have seen the basic classification of organic compound and the IUPAC rules. So these IUPAC rules will helpful in order to give the nomenclature to organic compounds. And we have seen there are four basic rules. First one is that we have to consider in order to giving the nomenclature to organic compound that we have to select a longest continuous chain of, let us say, carbon atoms having maximum number of carbon. Then second, start numbering from that end so that the substituent should get minimum number. सब्सटीट्यूएंट को कम से कम नंबर आना चाहिए, वो साइड से हमें नंबरिंग स्टार्ट करने हैं, आइदर फ्रॉम लेफ्ट और आइदर फ्रॉम राइट. Then if the same substituent is present more than 2 times 3 times, then we have to use the word di or tri. Then the different substituents are present, for example methyl and ethyl, then we have to use the alphabetical order. So these are the basic rules. Suppose there is a ethyl and methyl, then ethyl must be written first, even though you would have get the highest number while giving the numbering. So these are the basic rules which will helpful in order to give the nomenclature. So in this particular session we are going to see the nomenclature of the alkane, alkene and alkynes. Along with that we are also going to see the some of the alicyclic hydrocarbons. So let us see first alkanes. As we know that alkanes is the first member of the family of organic compounds. Basically we say that this is particular compound as a hydrocarbon because it majorly contain carbon and hydrogen as element. And alkanes are the compound which are connected to one another by means of a single bond only. There are only single bonds are present. So in order to giving the numbering, we have to consider the continuous longest chain which contain maximum number of carbon atoms. So that particular chain we have to consider as a parent chain. Okay, पहले क्या करने का है, ऐसी कार्बन की चेन चूज करो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है. सो बेस्ड अपॉन दैट काउंट डाउन द कार्बन्स, गिव द नंबरिंग एंड कंसिडर द नंबर इज इक्वल टू द पेरेंट अल्केन. अगर हम देखेंगे अल्केन्स, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या क्या हो सकता है और जनरल फार्मूला क्या हो सकता है, CnH2n+2. मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशो है वो डबल से +2 है, CnH2n. अगर कार्बन अगर समझो 1 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4. अगर कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6. सो दिस इज अ थिंग वी हैव टू रिमेंबर. देन इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन, देयर इज ओनली carbon carbon single bond and carbon hydrogen single bond which is formed by the sigma bond formation. So if you see the carbon, it is surrounded by 4 groups. As we know that valency, combining capacity of carbon is only 4. So carbon के बाजू में 4 बॉन्ड रहने जरूरी है. It is surrounded by 4 groups. Again the hybridization of carbon. So carbon is having sp3 hybridization and the bond angle must be around 109.5 minutes. So 109 degrees and 5 minutes or 28 minutes, this must be the bond angle which must be present in the hydrocarbons or alkanes. Then very importantly in the last part also we have seen, in order to give the nomenclature we have to see 3 first. First one is prefix, then the parent and सफिक्स. सफिक्स इज द लास्ट पार्ट. सो इफ अगर आपका कंपाउंड अगर अल्केन है तो लास्ट का सफिक्स क्या आना चाहिए, ANE. अगर मैं नाम बोलता हूँ मीथेन तो मेरे को क्या समझ में आना चाहिए, सो दिस पर्टिकुलर कंपाउंड मस्ट बी फ्रॉम द फैमिली ऑफ अल्केन्स. सो लास्ट वर्ड और सफिक्स मस्ट बी ANE. सो लेट अस सी द एग्जांपल्स. मीथेन हैविंग फार्मूला CH4. अगर हम लोग देखेंगे उसका लेविस स्ट्रक्चर, तो कार्बन जो है वो 4 डिफरेंट हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड से ज्वाइंट हुआ है.
So this is a Lewis structure. So remember carbon, here the valency is 1, 2, 3, 4. So when we write the structure, we have to check down the valencies also. If we see the tetrahedral structure of this particular methane, so this is a structure where we can clearly see this dotted line means it is behind the plane. This is dark line, that is called as a vase shape line. It is a towards observer, and these three bonds are these three atoms are in one plane. So this is a three-dimensional structure. If we see that it's a bond angle between two carbons, matlab HCC bond angle will be around 109 degree 5 minutes, and bond length in between the carbon and hydrogen is 1.09 Armstrong. So remember, this is a model. Then next alkane is ethane, which contains two carbons, CH3 connected to CH3. So this is how. Again see the carbon 1, 2, 3, 4. Again see this particular carbon 1, 2, 3, 4. So this is how you will find the three-dimensional structure, and the bond angle in between the two carbons is 1.53. Bond angle means what? It is the distance between the two neighboring carbons. Then if you see the carbon atoms in alkanes and other organic compounds are classified by the number of carbons directly bonded to them. Carbon कितने और कार्बन्स को ज्वाइन है बेस्ड अपॉन इट इज बीइंग क्लासिफाइड एज अ प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन एंड क्वाटरनरी कार्बन. अगर ये जो डार्क कलर का कार्बन है ये अगर कार्बन को ही ज्वाइन है एक सिंगल, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइमरी कार्बन. अगर वो दो कार्बन को ज्वाइन है तो उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कार्बन. अगर वो तीन कार्बन को ज्वाइन है तो उसको क्या बोलते हैं? टर्शरी कार्बन. अगर वो कार्बन अगर चार कार्बन को ज्वाइन है तो उसको क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी कार्बन. सो इफ यू सी दिस स्ट्रक्चर यू कैन इजीली आइडेंटिफाई. ये CH3 कार्बन को एक ही कार्बन को ज्वाइन है, सो दिस इज बिकम प्राइमरी. ये इधर भी ज्वाइन है कार्बन को, इधर भी ज्वाइन है, सो सेकेंडरी. सो ये 1, 2, 3, सो इट इज टर्शरी. सो इट इज 1, 2, 3, 4, so it will be quaternary. So remember, based upon that, the classification of carbon: primary carbon is bonded to only one, secondary to two, tertiary it will be joined to three carbons, quaternary it is joined to four carbons. Then carbon, if there are three carbons, then what will be name of that particular alkanes? Propane. Next one is butane. So this is how we can say that now we'll see the unbranched alkanes. Unbranched means what? There is no branching, straight chain carbon. So if there are 5 carbons, then it will be pentane. For 6 carbon it will be hexane. 6 carbon, 1, 4, this is the 4, 5 and 6, so 6 carbon. 7 carbon heptane, 8 carbon octane, 9 carbon nonane and 10 carbon decane. So this is how we can write. This structure will be CH3, CH2, CH2, CH2 8 times and then CH3. This is how we have to interpret the structure. Now we are going to see the branch alkanes. As it is expected that you should give the nomenclature to branch alkanes and some polyfunctional compounds. So in order to give the nomenclature to branch alkanes, what we have to think? When we see the structure, first of all we have to select a longest continuous chain. So this is a blue colored line which is considering the longest continuous chain, which contains the maximum number of carbon is 6. So that's why parent name is hexane. But it is having a substituent at this particular position, 3 position. So its number will be at 3 position. Which group is there? Methyl. So that's why name is 3-methyl hexane. नंबरिंग मैंने ये साइड से क्यों की? क्योंकि ये साइड से अगर मैं नंबरिंग करता हूँ तो उसको ये जो कार्बन है उसको कम नंबर आता है. यहाँ से अगर करता हो तो उसको 4 आ जाएगा, यहाँ से अगर करता हो तो 3 आ जाएगा. दैट्स वाई आई हैव स्टार्टेड नंबरिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड. Then this particular compound, try to give the names. What is the longest continuous chain? हमेशा longest continuous chain ऐसी straight नहीं होती, so it can be also
in this way also. So you can see the blue color. So this is the longest continuous chain. Maximum number of carbon is 7. So 7 means what is your alkane? Heptane. Okay, but as it is having a two substituent, one at 3 number carbon and one at 5 number carbon. So what these both the substituent are same, methyl and methyl. Though, so what we have to apply the third rule, same substituent two times we have to use the word di. So dimethyl. Okay, but we have to show the number of carbons to which particular group is it is joined. So it is a 3,5 dimethyl heptane. I will repeat, 3 and 5 dimethyl heptane. So this is a nomenclature for this particular compound. Then next one, try to give the name. Select a longest continuous chain. ये है longest continuous chain या ये है. अगर हम लोग दोनों देखते हैं तो दोनों में 6 नंबर ऑफ कार्बन आते हैं. सो कोई भी एक चूज कर लो. सो आई हैव सिलेक्टेड दिस पर्टिकुलर ब्लू कलर shown line. So it is a parent alkane is 6. So write down first hexane. Then try to find the different substituent. How many substituent are there? 1, 2 and this particular group 3. So there are 3 substituent. Out of 3, 2 are same. Okay, so this will be same. Then numbering. If I start numbering, then what number will come? 2, 2 dash 4. Matlab 2, 2, 4. If I start numbering from this end, what will be number? 3, 5. So 3, 5 is higher. So that's why you have to start numbering from this end. Okay. So we have to follow the alphabetical order. Ethyl, methyl, दो substituent है ना. So ethyl E comes first in the alphabetical order. Then how can we give the number? 4. 4 पे कौन सा ग्रुप है? इथाइल. 2 पे 2 ग्रुप है, दोनों सेम है. 2,2. दो बार क्यों लिखने का? क्योंकि दो मिथाइल ग्रुप 2 बार है, इसके लिए. डाइमिथाइल हेक्सेन. सो दिस इज विल बी IUPAC नेम. 4 ethyl, 2 dash 2 dimethyl hexane. So this will be IUPAC name. Then for this particular compound, what is the longest continuous chain? हमें देखते ही पता चलता है कि जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है वो. आप लोग डॉटेड लाइन से भी लिख सकते हैं अगर पेपर में है. सो ऐसे डॉटेड बना के वो वी कैन शो द longest continuous chain. Then try to find the names. 3 ethyl, 4 methyl हेप्टेन. नंबरिंग ये बाजू से क्योंकि यहाँ से नंबर 3, 4 आता है. यहाँ से अगर करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 आ जाएगा. सो दैट दिस इज अ मिनिमम. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन गिव द नॉमेनक्लेचर टू ब्रांच्ड अल्केन. ओके, सो दिस यू कैन अंडरस्टूड. फर्स्ट थिंग, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटेंट चेन. देन नंबरिंग ये जो एंड से करनी है जहाँ से सबस्टिट्यूएंट को कम नंबर आए. सो it is always easy to give the name to organic compound when we see the structure. Vice versa also we can practice. So when we see the name, based upon this particular name, we can also able to draw the structure. So structure अगर निकालना है, नाम देख के अगर structure draw करना है तो कैसे करेंगे? First of all, see this particular last part, hexane. What is a parent and suffix? So hexane 6 कार्बन ड्रॉ करो. उसके बाद जो सब्सटेंट है वो कार्बन पे 6 कार्बन ड्रॉ करे. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख डालो. सो जो नंबर पे वहाँ पे दिया है 4 इथाइल दिया है तो 4 पे जाके C2H5 लिख डालो. फिर 2 पे जाके एक मिथाइल, अगेन 2 पे और एक मिथाइल. सो वो ऐसे लिख के बाकी की वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से कंप्लीट करो. सो दिस इज हाउ वी कैन राइट. देन द नेक्स्ट family, alkenes. So alkenes are the compound which are having carbon double bonds. Alkenes में क्या रहते हैं? कार्बन double bond रहते हैं. So its naming is done by considering the longest continuous chain which contain carbon double bond. Alkenes में अगर आपको नंबरिंग longest continuous chain सिलेक्ट करनी है तो first thing we are to consider कार्बन डबल बॉन्ड उसमें आना चाहिए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन में. सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है. अल्किन्स का जनरल फार्मूला है CnH2n. कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो है 1:2 है.
डबल से CnH2n। देन जो कार्बन रहते हैं उसका हाइब्रिडेशन क्या रहेगा, sp2 रहेगा, बॉन्ड एंगल 122। एंड सफिक्स ENE, लास्ट जो पार्ट है वो सफिक्स क्या रहेगा, ENE। यहाँ पे देखो ENE, यहाँ पे भी ENE, सो लास्ट सफिक्स इज ENE। सबसे पहला अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसको क्या बोलते हैं, इथिलीन, और हम लोग IUPAC में क्या बोल सकते हैं, इथिन। देन 3 कार्बन 1 2 3, नंबरिंग मैंने बराबर की है क्या, 1 2 3 नहीं, गलत है, 1 2 3, सो दिस मस्ट बी नंबरिंग। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड शुड गेट मिनिमम नंबर, कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है उसको कम से कम नंबर आना चाहिए। दैट्स व्हाई आई कैन स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर 1 2 3। सो दिस इज अ प्रोपीन। देन दिस इज अ ब्यूटेन। इसको अगर मेरे को नंबरिंग करना है तो कैसे नंबरिंग करेंगे, this will become 1, this will become 2, this will become 3, this will become 4. So this is how we can give the numbering, right? Then cis to butene, नंबरिंग मैंने की है cis to butene। अगर cis to butene को ये करना है तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन क्या होगी मेरी, ये हो गई। Okay, so 1 2 3 4, so based upon that we can also calculate। सिस टू ब्यूटेन, सिस टू ब्यूटेन क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के थ्रू अगर मैं प्लेन पास करता हूँ तो ये प्लेन के ऊपर के साइड और नीचे के साइड दोनों सेम एटम है। अगर सेम रहते तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस। ट्रांस, ट्रांस में सेम ग्रुप्स अपोजिट साइड में रहते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन्स अपोजिट, मिथा CH3 अपोजिट, सो इट इज अ ट्रांस टू ब्यूटेन। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऐसी 1 2 3 4, राइट। कार्बन को कंसिडर करना है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन में। देन नेक्स्ट वन अल्कीन्स। So this is structure and I want to give the names to this particular structure. So what will I do? I will start numbering. I will select the longest continuous chain first. Then I will start numbering from this end. Why from this end? Because the carbon carbon double bond will get numbered 2 3. If I start numbering from this end, it will get 3 4. So that's why I can start numbering from here. Even though substituent should get maximum higher number, doesn't matter. So what will name, 4 methyl 2 पेंटीन। ये 2 नंबर क्या शो करता है कि 2 और 3 के बीच में क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ओके, 2 पेंटीन। आई विल रिपीट 4 मिथाइल 2 पेंटीन। पेंटीन अगर ये नाम अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या समझ में आता है, लास्ट वर्ड ENE मैंने अंडरलाइन किया है। व्हाट इज द मीनिंग फॉर दैट, अंडरलाइन इसलिए किया है कि आप लोगों को समझना चाहिए कि ENE लिखा है मतलब ये कौन से फैमिली से है, ये अल्किन फैमिली से है, राइट। मतलब उसमें क्या रहना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर उल्टा लिखना है हमको, आपको नाम दिया है और स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो 2 पेंटीन, पेंट मतलब कितने, 5 कार्बन, सो ड्रॉ द 5 कार्बन। देन 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड ड्रॉ करो, बाद में 4 नंबर कार्बन पे जाके मिथाइल ग्रुप स्टिकअप कर दो, और बाद में जो वैलेंसीज है दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड विद द हाइड्रोजन्स। ओके, दिस इज स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6, क्या नाम होगा, 6 कार्बन है, हेक्सिन, राइट। डबल बॉन्ड किस किस कार्बन के बीच में है, 1 और 2 के, सो व्हाट विल नेम, 1 हेक्सिन। ओके, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम है। यू कैन ऑल्सो ड्रॉ इन दिस वे ऑल्सो और इन दिस वे ऑल्सो। सो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल 1 हेक्सिन, 4 मिथाइल 1 हेक्सिन। देखो इसका क्या होगा, अभी मेरे को बोलो, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कौन सी है, ये है। ओके, 2 पे कौन सा ग्रुप है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक इथाइल है, ये देखो यहाँ पे एक इथाइल है और एक मिथाइल है। सो हु हैज टू कम फर्स्ट, इथाइल ऑफ कोर्स। सो व्हाट विल नेम, 2 इथाइल 3 मिथाइल 1 पेंटीन। सो दिस इज हाउ वी कैन गिव द नेम। नेक्स्ट वन, ये स्ट्रक्चर है, 1 1 2 3 4
और एक 5. सो व्हाट विल नेम? सिस 3,4 डाइमिथाइल 2 पेंटीन. ये स्ट्रक्चर आप सेपरेटली लिख सकते हैं, CH3. ओके, दिस इज हाउ वी कैन राइट. देन ट्रांसहेक्सिन, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कौन सी है? 1 2 3 4 5 6. यहाँ से भी आप नंबरिंग करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं. 1 2 3 4 5 6, नो प्रॉब्लम. Why trans? Because the same groups are on opposite sides, so it is a trans 3-hexane. Then the next family in the alkenes also, diene means what? डबल बॉन्ड दो बार है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाइन. सो दिस इज अ compound where you will find the carbon carbon consecutive bonds are there, successive. कार्बन कार्बन हम लोग जैसे देखते हैं अल्किन्स में कॉन्जुगेटर रहते हैं. कॉन्जुगेटर मतलब क्या? एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड. तो यहाँ पे जो है वो कनेक्टेड है तो उसका नाम क्या हो गया? 1,2 प्रोपैडाइन. सिर्फ हमको क्या करना है? इन वर्ड के आगे डाई यूज़ करना है. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डाई इन. ओके, डाई इन. डाइन्स मतलब भी क्या है? दो बार कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है. ओके, ये 1,2 क्या बताता है? 1 और 2 के बीच में है और 2 और 3 के भी बीच में है. सो दिस इज स्ट्रक्चर 1,2 प्रोपैडाइन. ये स्ट्रक्चर का नाम बोलिए. 1,3 मतलब क्या है? 1,3 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में. सो 1,3 ब्यूटाडाइन. देन साइक्लिक. सो साइक्लिक यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. ये 5 कार्बन है ना. इसको नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 2 3 4 और 5. So this is how numbering is there. So it is cyclopentene. इसको कैसे नंबरिंग करेंगे? 1 2 3 4 5 and 6. So it is a साइक्लोहेक्सिन. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर जाना. एक्चुअली एक नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं या यहाँ पे दे सकते हैं. सो इधर आप यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा, ये ऐसे भी नंबरिंग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. बट व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया? एक नंबर यहाँ हमेशा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को चाहिए. आप अगर यहाँ पे एक नंबर देते तो नहीं चलेगा. आप अगर यहाँ पे एक नंबर देते तो नहीं चलेगा. एक तो एक नंबर यहाँ पे ही चाहिए या यहाँ पे ही चाहिए. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन गिव द नंबरिंग. इसका नाम बोलिए अभी. 1 2 3 4. सो मैं इस डायरेक्शन में क्यों गया एंटी क्लॉकवाइज? बिकॉज यहाँ से अगर जाता हो तो सब्स्टिट्यूएंट को ये क्या है? कम से कम नंबर आएगा. सो दैट्स वाई आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड. सो व्हाट इज द नेम? 3-methyl cyclopentene. मैं नंबरिंग अगर यहाँ पे करता हूँ 1 2 3 4. आइदर यू हैव टू फॉलो साइक्लिक क्लॉकवाइज में डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. हाँ, ये तो ऐसा नहीं एक नंबर यहाँ पे दिया, एक नंबर यहाँ पे दिया, एक नंबर यहाँ पे दिया, ऐसे नहीं चलेगा. सो आइदर फॉलो क्लॉकवाइज मैनर और एंटी क्लॉकवाइज मैनर. देन नेक्स्ट फैमिली अल्काइंस. अल्काइन लास्ट वर्ड क्या रहना चाहिए? अल्काइंस में कार्बन कार्बन क्या रहते हैं? ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं. रिमेंबर, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज देयर and general formula is CnH2n. So in order to giving the numbering to alkynes, always remember the carbon carbon triple bond should be the part of the longest continuous chain. कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जिस रिंग में है उसको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सिलेक्ट करना है. लास्ट सफिक्स क्या यूज करना है? YNE. 1 2 इथाइन. ओके, लास्ट और 2 कार्बन है इसके लिए इथ एंड लास्ट में क्या लिखना है? YNE. ये पार्ट हमेशा आना ही चाहिए सफिक्स का. देन काउंट डाउन द नंबर. सो व्हाट विल नेम? प्रोप एंड लास्ट वर्ड इज वाइन. सो दिस इज हाउ वी कैन गिव द नंबरिंग. अभी इसका नाम दो. नाउ माई लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन विल बी दिस वन. ओके, ये अगर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन होती है तो क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल 4 नंबर पे कार्बन पे क्या है? मिथाइल ग्रुप है. सो 4-methyl 2 हेक्साइन. 2 और 3 के बीच में क्या है? ये 2 और 3 के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है. सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन फर्स्ट लेटर. विच वन? फर्स्ट लेटर 2. नेक्स्ट वन इज ब्यूटाइन. 1 2 3 4. यहाँ पे नंबर ऐसे करो या यहाँ से करो, नो डजेंट मैटर.
it is symmetrical compound. हाँ, ये स्ट्रक्चर अभी देखो. So this is a structure you will get surprised. Why? Because there are two functionality. It is a polyfunctional compound. So डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है. ओके, सो ऐसा अगर कंपाउंड है तो उसको नॉमेनक्लेचर करते टाइम क्या करना है, नंबरिंग, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को कम से कम आनी चाहिए, ऐसे तरफ से नंबरिंग करनी है. ओके, नंबरिंग ये साइड से करनी है. सो क्या आ जाएगा, ब्यूट 1 इन, 4 कार्बन है इसके लिए ब्यूट लिखा. ओके, उसके बाद हमको अभी डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स की पोजीशन मेंशन करनी है. सो 1 और 2 के बीच में, इसके लिए मैंने पहले क्या लिखा 1, बाद में ट्रिपल बॉन्ड 3 और 4 के बीच में, इसके लिए मैंने क्या लिखा 3. सो दैट्स वाई नेम हो गया ब्यूट 1 इन 3 वाइन. नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी कार्बन्स 5. सो नेम क्या लिखा पेंट. देन इन 1 और 2 के बीच में, और वाइन किसके बीच में 3 और 4 के. सो दैट्स वाई नेम इज 1 पेंट इन 3 वाइन. ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं. देन द लास्ट फैमिली एलिफेटिक साइक्लोअल्केन्स. सो एलिफेटिक साइक्लोअल्केन्स these are the cyclic compound. Okay, remember this is a cyclic compounds having general formula CnH2n. सो उसमें अभी प्रीफिक्स लिखना है, नॉट अ सफिक्स. प्रीफिक्स मतलब क्या, नाम के पहले कौन सा वर्ड लिखना है, साइक्लो, और उसके बाद फिर जो नाम रहेगा वो लिखना है. ओके, हम लोग अभी स्ट्रक्चर देखेंगे. कौन सा स्ट्रक्चर है, साइक्लोप्रोपेन. कितने कार्बन है 1 2 और 3. यहाँ पे कितने कार्बन है 1 2 3 और 4. सो दिस इज हाउ वी कैन गिव द नंबरिंग. ये कंपाउंड है, इसमें कितने कार्बन है 1 2 3 4 5. सो दैट्स वाई साइक्लोपेंटेन. साइक्लोहेक्सेन, ये स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया है, साइक्लोहेक्सेन. 6 कार्बन है. हमेशा देखेंगे आप साइक्लो 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 वर्ड आ गया है पहले. ये सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन्स है. सो मिथाइल साइक्लोपेंटेन. ओके, यहाँ पे 1 नंबर देंगे, फिर 2, और यहाँ पे ऐसे कंजुगेटिव मैनर में. डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड 1,3 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन. क्या नाम आ जाएगा 1,3 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन. देन दिस कंपाउंड, what is the substituent, ethyl. So what is the name, ethyl cyclohexane. So go through this particular part for 4 families what we have seen. So try to write the structure. Unless you don't write the structures, it will be very difficult to write the names to those compounds. So write, think, select along this continuous chain and give the numbering to the compound. Numbering is very important. Unless you don't give the proper numbering, the name will get incorrect. So that's why the numbering must be there. So go through this particular 4 families. See you in the next session with some another topic.